हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देन वी विल डिस्कस सेम कोलिजन इन टू डायमेंशन। सो व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन? डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। द कोलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। सपोज वी हैव टू बॉडीज of mass m1 moving with velocity u1 and another body of mass m2 moving initially with velocity u2. They are moving along the same straight line. यहाँ मान लेते हैं this is the condition of collision, and after collision these two bodies continuously move along the same straight line, but there is some loss of kinetic energy. So this collision becomes inelastic collision. Now we have to find the velocities of these two bodies after inelastic collision. Now we know that in all types of collision total energy is conserved and angular linear momentum is also conserved. So first, what will be the definition of inelastic collision in one dimension? If two bodies moving initially along the same straight line and collide involving some loss of kinetic energy and moves continuously along the same straight line after collision, this type of collision is known as inelastic collision. Now यहाँ हम ये condition discuss कर चुके हैं using law of conservation of linear momentum. Using law of conservation of linear momentum, we know that initial linear momentum before collision is equal to final linear momentum after collision. So linear momentum before collision, mass m1 velocity u1, mass m2 velocity u2. So initial linear momentum क्या होगा, m1 u1 plus m2 u2 is equal to final momentum after collision m1 v1 plus m2 v2. Now if we know the values of m1 m2 and initial velocity u1 u2, now we have two velocities v1 and v2 and one equation. एक इक्वेशन हमारे पास में दो वेलोसिटी, तो यहाँ से यदि हमें v1 और v2 निकालना है तो प्रैक्टिकली किसी एक की वैल्यू निकालेंगे या फिर वी हैव एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देन आउट ऑफ v1 and v2 one value will be given and we can calculate the value of v1 or v2 if one of them is given. Now we will discuss perfectly inelastic collision. What is perfectly inelastic collision? यदि यहीं से हम बात करते हैं perfectly inelastic collision क्या होगा? What is perfectly inelastic collision? We know that in case of perfectly inelastic collision two bodies move with a common velocity. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन आएगी हमारे पास में, सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2, मास m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2, एंड आफ्टर कोलिजन दीज टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी. दोनों वेलोसिटी कोलिजन के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद में कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो इस प्रकार के कोलिजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. नाउ इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास में, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2. टोटल मास हो गया हमारे पास में कोलिजन के बाद में m1 m2 और कॉमन वेलोसिटी दोनों की हो गई v. सो वी कैन कैलकुलेट कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज इक्वल टू m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. This is the common velocity after collision in case of perfectly inelastic collision. Now we know that in case of perfectly inelastic collision there is some loss of kinetic energy. Now if we calculate loss of
kinetic energy in case of perfectly inelastic collision. Then we can calculate loss of kinetic energy. क्या होगा? If we calculate initial kinetic energy minus final kinetic energy. हम ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देते हैं और ये आंसर यदि हमारा पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो लेट अस कैलकुलेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने क्या ले रखा था? m1. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u1. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले ऑब्जेक्ट की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में सेकेंड ऑब्जेक्ट की हाफ m2 u2 square. This is initial kinetic energy. In the same way, if we calculate final kinetic energy, then in case of final, total mass हुआ हमारा m1 plus m2 और velocity है v. This is common velocity. So final kinetic energy क्या आएगी हमारे पास में? हाफ m1 plus m2 and value of v is we have calculated. v की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. क्या आएगा हमारे पास में आंसर? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और m1 प्लस m2 की एक पावर से यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी. वी हैव फाइनल काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर और अपॉन में m1 प्लस m2 की एक पावर यहाँ से रह जाएगी, एक पावर कैंसिल होगी. दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग लॉस, इफ यू कैलकुलेट लॉस देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. इसमें से फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी, ये वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, इसको माइनस कर देते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ से मैं यहाँ पुट करता हूँ. हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर था, अपॉन में m1 प्लस m2 और वी कैन कैलकुलेट इट बाय टेकिंग LCM. लेट अस सॉल्व इट और ये आ जाएगा. इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास में m1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर. इन द सेम वे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास में m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 और ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से u2 स्क्वायर माइनस यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से हम हमारे पास में ये जो होल स्क्वायर है, यदि इसी को हम डायरेक्टली यहाँ ओपन कर लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर क्या होगा? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 u2. राइट, हमने यहाँ से a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लिया एंड फाइनली हमारे पास में रिजल्ट आएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस, ये सारे प्लस की टर्म थी, बाहर माइनस से सारी माइनस के हो जाएंगी. ये होगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 u2 अपॉन, और इस सारे के बटे में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। सो m1 u1 स्क्वेयर से m1 u1 स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और m2 u2 स्क्वेयर से m2 u2 स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में जो टर्म रह जाते हैं, फाइनली जो टर्म रह जाएंगे उनको सोल्व करने के बाद में इफ़ वी कैलकुलेट लॉस, तो फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास में, तो जो टर्म लेफ्ट रहेगी, फर्स्ट टर्म m1 m2 u1 स्क्वेयर, सेकेंड टर्म m1 m2 u2 स्क्वेयर, और जो थर्ड टर्म रह जाती है माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 u1 u2। इन सभी में से m1 m2 हम कॉमन ले लेते हैं। m1 m2 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से रह गया u1 का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म से रह जाएगा हमारे पास में u2 का स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म थी ये वाली थी, यहाँ से रह जाएगा ट्वाइस ऑफ u1 u2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2, और वी कैन से दैट ये जो रिजल्ट आया हमारे पास में, इसको हम वी कैन राइट इट एज m1 m2 इंटू u1 प्लस दिस इज u1 माइनस u2, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। एंड वी सी दैट द फाइनल जो रिजल्ट आया हमारे पास में, दिस इज पॉजिटिव, m1 m2 दीज आर मास, u1 माइनस u2 दिस इज होल स्क्वायर, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव, m1 प्लस m2 इट इज मास, दिस इज पॉजिटिव। इट मीन्स हमने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल को कैलकुलेट किया, और हमारे पास में क्या आ गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, याद कीजिए हम पहले डिफाइन कर चुके हैं व्हाट इज टू डायमेंशन कोलिजन। यदि कोई दो बॉडीज विच आर मूविंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन और इन ए प्लेन बिफोर कोलिजन, एंड कोलिजन के बाद में वो बॉडी किसी प्लेन में मूव करें, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड अनदर बॉडी of mass m2, these are moving with velocity u1 and u2, and suppose there is collision, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो कोलिजन होता है वो यहाँ कोलिजन होता है इस प्रकार से, these are moving along the same straight line, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, ये बॉडी यहाँ आके इसको कोलाइड करती है, then what will be the direction of force? Direction of force is along the सेंटर ऑफ दीज टू बॉडीज, एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट बॉडी है वो मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, और सेकंड बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है। फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या मान लेते हैं v1, सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v2, और इनिशियली दिस वाज द डायरेक्शन। सपोज v1 मेक्स एंगल थीटा एंड वेलोसिटी v2 मेक्स एंगल फाई, so this type of collision is inelastic collision in two dimension and there is some loss of kinetic energy. So इस केस में हम क्या करेंगे, we cannot apply the law of conservation of kinetic energy because kinetic energy is not conserved, but we can apply law of conservation of linear momentum. If we apply law of conservation of linear momentum separately along x-axis एंड वाई एक्सिस, पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हम बात करते हैं तो कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2, सो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी, इसका मास कितना था m1, सेकेंड बॉडी का मास क्या था m2, ये मूव करती है वेलोसिटी v1 से। यदि वेलोसिटी v1 को हम कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो वेलोसिटी v1 का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दिस इज v1 cos थीटा, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा
दिस इज v1 sin थीटा। इन द सेम वे वेलोसिटी v2 को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो v2 का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट v2 cos फाई, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा v2 sin फाई। सो लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस आफ्टर कोलिजन एंड इट इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। वी कैन राइट इट एज m2 v2 cos फाई। एंड इसी रिजल्ट को हम यदि y एक्सिस के अलोंग अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को y एक्सिस के अलोंग, वी नो दैट बिफोर कोलिजन से पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद में ये दिस स्टार्ट मूविंग इन ए प्लेन, सो लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस बिफोर अलोंग y एक्सिस इज 0। सो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखो फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 था, y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या आ गई v1 sin थीटा। सो वी कैन राइट m1 v1 sin थीटा माइनस, यदि अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस क्या होगा नेगेटिव। सो दिस इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई। और वी कैन से दैट इस टर्म को यदि हम इधर ले आते हैं देन वी विल हैव m1 v1 sin थीटा इज इक्वल टू m2 v2 sin फाई। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या वेरिएबल है, वेरिएबल्स जो कोलिजन के बाद में आए v1 v2 थीटा एंड फाई। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 देन यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। सो ये तो हो गया हमारे पास में इनइलास्टिक कोलिजन। अब जिस तरीके से हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया था, उसी तरीके से हमारे पास में एक कंसेप्ट और आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नाउ व्हाट इज meant by perfectly inelastic collision? If two bodies move with a common velocity after collision, then this type of collision is known as perfectly elastic or inelastic collision। यहाँ हम बात कर रहे हैं inelastic collision की। So we can assume that suppose we have a body of mass m1 and it is moving initially with velocity u1 making an angle theta with x axis and here ये मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी बॉडी प्रेजेंट है जिसका मास कितना है m2 and it is moving initially with velocity u2 along x axis। सो कोलिजन के बाद में यहाँ मान लेते हैं दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद में दोनों वेलोसिटीज मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट दे मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी v making an angle phi with x axis, then this type of collision is known as perfectly inelastic collision। So perfectly inelastic collision के केस में if we apply law of conservation of linear momentum, फर्स्ट अप्लाई करते हैं हम x एक्सिस के along x एक्सिस। नाउ फर्स्ट बॉडी जिसका मास था m1, ये बॉडी इनिशियली x एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है थीटा और ये मान लेते हैं हम इधर है हमारे पास में दिस इज y एक्सिस, राइट। यदि वेलोसिटी v को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो वेलोसिटी v का ये वाला कंपोनेंट आएगा तो v cos फाई एंड दिस कंपोनेंट इज v sin फाई। इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, वी कैन से दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u1 अलोंग x एक्सिस इज u1 cos थीटा एंड y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u1 sin थीटा एंड u1 sin theta। This is the component of initial velocity u1 along x-axis and y-axis। So using law of conservation of linear momentum along x-axis, first body जिसका मास कितना था m1,
वेलोसिटी कितनी है इसकी, u1 cos थीटा, सो m1 u1 cos थीटा, और हमने ये माना था सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 था, ये इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, सो वी कैन राइट इट एज m2 u2. दिस इज इनिशियल मोमेंटम along x axis before collision. So this must be equal to linear momentum after collision along x axis, और x axis के along टोटल मास कितना हुआ m1 प्लस m2, और वेलोसिटी आ गई हमारी v cos phi, और वी कैन राइट इट हेयर m1 u1 cos theta प्लस m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v cos phi. ये तो आ गया x एक्सिस के अलोंग. सिमिलरली यदि हम y एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग देखो मास कितना है m1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1 sin थीटा. यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन को या इधर जो हमारे पास में y एक्सिस इसको नेगेटिव ले लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में m1 u1 sin थीटा प्लस 0. सेकेंड ऑब्जेक्ट इनिशियली x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, सो इसकी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 हो गई, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन इज मास इज m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी इज माइनस v sin phi, और वी कैन से दैट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास में m1 u1 sin थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v sin phi. So with the help of these two equations, these are two equations in case of perfectly inelastic collision in टू डायमेंशन. इन दो इक्वेशंस की हेल्प से यदि हमें u1 u2 पता हो, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 एंड मास m1 m2, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v थीटा एंड phi. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट perfectly inelastic collision in two dimension. Thanks and keep on watching.